ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ سڑک پر ننگے پیر بھاگ رہی تھی جبکہ حنان شاہ کی گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ بالآخر وہ تھکتی زمین پر گری۔ اس کے مخملی پیروں کو پتھر زخمی کر چکے تھے۔ حنان شاہ گاڑی سے اترتے اس کی جانب آیا اور بالوں سے پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا۔ بھاگنے کی خواہش ہو گئی پوری؟ یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے میری جان، جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں میرا راج چلتا ہے۔ وہ غرایا تو اینا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ ابھی ڈاکٹر بنی تھی اور کیمپنگ کے لیے گاؤں آئی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ گاؤں کے سردار حنان شاہ کی نظر اس پر ٹھہر جائے گی۔ اسے واپس لے جاتے حنان شاہ نے برف کے نرم و ملائم گولے آسمان سے زمین کی جانب محو سفر تھے۔ ہر چیز کو جیسے برف نے ڈھک سا لیا تھا۔ ماحول میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اینا سڑک کنارے ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے گہری سوچ میں چلتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی رات کو واک کے لیے اپنے گھر کے باہر سڑک پر نکل آتی، اور آج کل تو ویسے بھی کرسمس کی تیاریاں جاری تھیں۔ اسی وجہ سے سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ ہر چیز کو کرسمس ٹری اور لائٹوں سے خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا۔ اینا کو یہ رونقیں بہت پسند تھی، اسی لیے اس کا آج کل یہی معمول تھا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر یوں ہی چہل قدمی کرنے کے لیے نکل آتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جوزف کہیں سے بھی اسے ڈھونڈتا ہوا نکل آئے گا، اور یہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں جوزف اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اینا کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم میرا پیچھا کرنا کب بند کرو گے؟ اینا نے اپنی کافی کے کپ میں سے پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے اس طرح سے رات کے وقت اکیلے سڑکوں پر نہ نکلا کرو، مگر تم میری بات سنتی ہی نہیں، تو مجھے بھی مجبوراً تمہارا پیچھا کرنا پڑتا ہے، جوزف نے انگریزی میں کہا تھا۔ جوزف کی بات سن کر اینا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں؟ تمہارا ملک میرے لیے محفوظ نہیں ہے کیا؟ اینا کے لہجے میں شرارت تھی۔ جوزف بھی اس کی شرارت سمجھتا تھا۔ تمہارے جیسی معصوم اور حسین لڑکیوں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں، جوزف نے منہ بناتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اینا کا بے ساختہ کہا فضا میں گونجا۔ جوزف پل بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوا۔ وہ اینا کے حسن کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ اینا کے گہرے سیاہ بالوں پر گرتے برف کے چھوٹے چھوٹے سے ذرے ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ جوزف، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، ایک ڈاکٹر بن چکی ہوں۔ تمہیں میری حفاظت کے لیے یوں ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اینا نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ جوزف نے ناراض نظروں سے اینا کی طرف دیکھا۔ اینا، میں تمہارا دوست ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، جوزف نے اینا کے مسکراتے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اینا کے سامنے آنے پر ہمیشہ اسی طرح سے بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ جوزف، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ابھی تک یہ بات میں نے اپنی ماما کو بھی نہیں بتائی، اینا نے سنجیدہ ہوتے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جوزف نے سوالیہ نظروں سے اینا کی طرف دیکھا۔ میں پاکستان جا رہی ہوں، میری ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اینا نے جوزف کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اینا کی طرف دیکھا۔ اینا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری ماما کو پتہ چلا تو وہ تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ جوزف نے تعصب سے اس سر پھیڑی لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی تھی۔ میں جانتی ہوں جوزف، جبھی تم سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز تم گھر آ کر انہیں سمجھاؤ، مجھے پاکستان جانے کی اجازت دے دے۔ لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہتی ہو؟ جوزف نے حیرانی سے سوال کیا۔ اینا نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں میرے بابا ہیں، میں بس ایک بار اپنی زندگی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے سینے سے لگنا چاہتی ہوں، اینا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن تمہارے پاس تمہاری ماما ہے، پھر تمہیں اپنے بابا کی کیا ضرورت؟ مجھے دیکھو، میرے ماما بابا دونوں اسی شہر میں ہیں،
मगर मुझे उनसे मिले सालों गुजर गए हैं। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हैं, एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़े हैं तो नए पार्टनर्स भी तलाश कर लिए हैं। जबकि सुना है मेरी मॉम ने तो अपने दूसरे हस्बैंड को भी छोड़ दिया है और अब उनसे आधी उम्र का उनका बॉयफ्रेंड है। मगर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में मुतमईन हूं। तो तुम इतने सालों में क्यों मुतमईन ना हो सकी? जबकि तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ रहती हैं, तुमसे इस कदर प्यार करती हैं और तुम उन्हें ही छोड़कर जाने की बातें कर रही हो। जोसेफ ने ऐना की तरफ तासुफ से देखते उसे सच्चाई से आगाह करने की कोशिश की थी। जोसेफ, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मेरा खमीर इस मिट्टी से नहीं उठा। मुझे याद है मेरे बाबा मुझसे प्यार करते थे। बचपन की मिट्टी से यादें मेरे जहन में नक्श हैं। और तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारी मामा का आज तीसरा बॉयफ्रेंड है और मेरे मामा बाबा की डाइवोर्स तक नहीं हुई। मैंने रातों को अपनी मामा को रोते हुए देखा है और मेरे पास उनका दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं है। ऐना का लहजा भीगा हुआ था। जोसेफ एक ठंडी सांस भरकर रह गया। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, यहां तक कि अब उसकी ठंडक ऐना को अपनी हथेलियों पर महसूस हो रही थी। ऐना सर झुकाए वापस जाने के लिए पलट गई, जबकि जोसेफ बर्फ पर बने उसके कदमों के निशानों पर चलता हमेशा की तरह उसके पीछे आ रहा था। जोसेफ ने तासुफ से आसमान की तरफ देखा। वो जानता था कि ऐना उसके दिल की बात कभी समझ नहीं सकेगी। जोसेफ ऐना के लिए एक दोस्त था और शायद हमेशा दोस्त ही रहने वाला था। ऐना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम डॉक्टर बन गई हो तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अब अपनी मर्जी चलाओगी। मैं तुम्हें कभी पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम भले अपनी कैंपिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क चली जाओ, मगर तुम पाकिस्तान नहीं जाओगी। रायमा ने ऐना की तरफ देखते कड़े लहजे में कहा था। ऐना नर्म और मुलायम सोफे में पांव ऊपर किए बैठी थी। वो इस वक्त शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी। स्याह बालों की चोटी कमर पर पड़ी हुई थी। उनमें से कुछ शरारती लटें निकलकर ऐना के चेहरे का अहाता किए हुए थी। लेकिन मामा, मैं पाकिस्तान जाने की हामी भर चुकी हूं और मेरा नाम भी जा चुका है। किसी भी वक्त मुझे जाना पड़ सकता है। अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं, ऐना ने मासूम बनते हुए कहा था। रायमा उसे देखकर रह गई। ये लड़की हमेशा उनके सब्र का इम्तिहान बन जाती थी। ऐना ने रायमा को यह बात नहीं बताई कि उसका पाकिस्तान जाने के पीछे असल मकसद क्या है। उसने बस रायमा को यही बताया कि वो अपनी कैंपिंग के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है। मामा, अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी चंद दिनों की तो बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ऐना ने रायमा को तसल्ली दी। और वैसे भी आपको याद है, मैं पिछले साल अपने कॉलेज के साथ कैलिफोर्निया गई थी, जब तो आपकी कोई एतराज नहीं किया था, और अब आप इस तरह से कर रही हैं। ऐना ने मुंह बनाते हुए कहा। रायमा बेबसी से उसे देखकर रह गई। बहू अपने बाप का परतो थी। वही नैन नक्श, वही आंखें, गहरी नीली आंखें। रायमा के लाख मना करने के बावजूद भी ऐना ने पाकिस्तान जाने की तैयारी कर ली। उसे बस वहां 2 हफ्ते के लिए जाना था। वो बहुत पुरजोश थी। रायमा उसे रोक रोक कर थक गई थी, मगर वो उनकी किसी बात पर कान नहीं धर रही थी। ऐना की कल सुबह फ्लाइट थी। वो रात को वॉक करने के लिए निकल आई। कुछ ही देर के बाद जोसेफ भी उसके हमकदम हो गया। ऐना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं वॉक कर रही हूं? ऐना ने मुस्कुराते हुए जोसेफ से पूछा। क्रिसमस आकर भी गुजर गया था। अब हर तरफ एक उदासी सी छाई हुई थी। चंद दिन पहले जो गहमा गहमी उरूज पर थी, अब वो कहीं खो सी गई थी। सड़कों पर भी मामूली सा रश था। आज तुमने कॉफी नहीं ली? जोसेफ ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके दूसरा सवाल किया। मेरी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं पाकिस्तान जा रही हूं 2 हफ्ते के लिए। ऐना ने भी उसके सवाल को नजरअंदाज करके उसे बताया। मैं जानता हूं, तुम्हारी मामा मुझे बता चुकी हैं,
और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम वहां जाने की जिद छोड़ दो। जोसेफ ने उसकी गहरी नीली आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में कहा, जोसेफ, मामा को मत बताना कि मैं वहां क्यों जा रही हूं। ऐना पर जैसे उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो लापरवाह से लहजे में बोली थी। जोसेफ उसे देखकर रह गया। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो नहीं रुकेगी। जाने क्यों जोसेफ का दिल भी डर रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि ऐना पाकिस्तान जाए, मगर वो ऐना को रोकने का कोई हक नहीं रखता था। भले वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, मगर ऐना ने भी हमेशा उससे एक दूरी बनाकर रखी थी। वो दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कर सकते थे, मगर जोसेफ जानता था कि ऐना के दिल में और उसकी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। अमेरिका के माहौल ने भी ऐना पर कोई असर नहीं डाला था। जोसेफ हमेशा से उससे अपने दिल की बात करना चाहता था, मगर हमेशा ही रुक जाता। मगर वो आज सोच कर आया था कि ऐना को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। ऐना, मेरी बात सुनो। जोसेफ ने संजीदगी से ऐना को मुखातिब किया। ऐना ने चलते चलते पलटकर जोसेफ की तरफ देखा। वो दोनों अपनी अपनी जगह रुक से गए थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, जोसेफ ने ऐना की आंखों में झांकते हुए मजबूत लहजे में कहा। और ऐना उस वक्त तो डर गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जोसेफ अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दे। जोसेफ उसके लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐना ने एक गहरी सांस भरी। जोसेफ, तुम मेरी बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर इससे ज्यादा हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता, और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हो। और मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ऐना ने नरम लहजे में उसे समझाया। जोसेफ के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं अब चलती हूं जोसेफ, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, वापस आने के बाद मिलूंगी। ऐना ने मुस्कुराते हुए जोसेफ से कहा और वापस जाने के लिए पलट गई। आज जोसेफ उसके कदमों के निशानों पर चलता हुआ उसके पीछे नहीं आया था। कहीं जैसे कुछ टूट सा गया था। ऐना ने पलटकर जोसेफ की तरफ देखा। वो अब तक वहीं खड़ा था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, मगर जोसेफ को हर किस्म की खुशफहमी और गलत फहमी से निकालना भी जरूरी था। ऐना अगली सुबह जब फ्लाइट से पाकिस्तान आ गई, वो रायमा को नाराज करके आई थी, मगर उसने सोच लिया था कि वो वापस जाकर उन्हें मना लेगी। वो माँ थी, कब तक नाराज रह सकती थी। ऐना पहली बार पाकिस्तान आई थी। वो 8 साल की उम्र में यहाँ से गई थी। बहुत सी मिटी मिटी सी यादें उसके जहन में महफूज थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके बाबा उसे कहाँ मिलेंगे। वो उनके तलाश में यहाँ तक आ गई। वो अपने बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि किस्मत उसे वहीं ले जा रही थी जहां से उसका खमीर उठा था। ऐना के साथ मजीद चंद डॉक्टर्स और भी थे। वो सब लोग पाकिस्तान के इलाके सवात से मुल्हिका शहर में कैंप लगा रहे थे। ऐना भी बहुत पुरजोश थी। वो यहाँ आकर बेहद खुश थी। उन लोगों के ठहरने के लिए एक होटल में बंदोबस्त किया गया था, जहां उन्हें बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर थी। आज उन्हें आए पहला दिन था। काम की भाग दौड़ की वजह से ऐना बेहद थक गई थी। वो अपने कमरे की बालकनी में चली आई, और अमेरिका के मुकाबले में यहाँ सर्दी बेहद कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। इसलिए उसने उस वक्त महज टी-शर्ट पहन रखी थी। बाबा, आप कहाँ हैं? आप जानते हैं मैं आपको कितना याद करती हूँ। ऐना ने दुखी दिल के साथ अपने ही ख्यालों में अपने बाबा को मुखातिब किया। उसकी आंखें भर आई थी। मैं मामा को नाराज करके यहाँ आई हूँ। प्लीज आप मुझे मिल जाएं। मैं कुछ नहीं जानती कि आप इस वक्त कहाँ हैं। मामा ने भी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। बस मेरी याददाश्त में मिटी मिटी सी यादें हैं, जिनके सहारे मैं 7 समंदर पार यहाँ तक आ गई हूँ।
प्लीज एक बार मुझे मिल जाएं। ऐना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐना ने रायमा को रातों को उठकर रोते देखा था, अपने शौहर के लिए तड़पते हुए देखा था, मगर रायमा कभी ऐना को कुछ बताती नहीं थी। ऐना ने सच जानने की बहुत कोशिश की, मगर हमेशा नाकाम रही, और अब सच की तलाश उसे यहां तक ले आई। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठ गई। यहां आकर उसका दिल मजीद बोझल सा हो गया था। वो वॉक करने बाहर निकल आई थी। उसे यकदम ही जोसेफ का ख्याल आया। वो उसका दिल तोड़ कर आई थी। ऐना के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा कि अभी किसी कोने से जोसेफ निकलकर उसके सामने आ जाएगा और उससे ढेरों बातें करने लगेगा। यूं ही ख्यालों में गुम वो वॉक करते करते कुछ दूर निकल आई। माहौल में खुनकी बढ़ गई थी। उसकी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर रायमा का नाम जगमगा रहा था। ऐना ने मुस्कुराते हुए फोन उठाकर कान से लगा लिया। मामा, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी, ऐना ने लाड से कहा था। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम कभी मुझे छोड़कर इतनी दूर नहीं जाती, रायमा ने शिकवा किया। मामा, मैं बस 2 हफ्ते के लिए आई हूं, उसके बाद मुझे आपके साथ ही रहना है, ऐना ने थके थके से लहजे में कहा। तुम पाकिस्तान के किस शहर में हो? रायमा ने मामूली से लहजे में पूछा, मगर उनके लहजे में छुपा हुआ खौफ ऐना से छुपा नहीं रह सका। मामा, मैं सवात के करीबी शहर में हूं, ऐना ने शहर का नाम बताया था। हम कुछ दिनों में सवात भी घूमने जाएंगे। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ की खूबसूरती की बहुत तारीफ की है। मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी। मगर रायमा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। ऐना वहीं पहुंच गई थी जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसके बाबा रहते थे, जिनकी तलाश की उम्मीद लेकर वो इतनी दूर से यहां तक चली आई थी। रायमा ने कुछ भी कहे बगैर फोन काट दिया। उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जिस जगह से और जिन लोगों से वो हमेशा ऐना को दूर रखती आई थी, किस्मत ऐना को वहीं ले गई। ऐना ने हैरानी से फोन की तरफ देखा। उसने रायमा को दोबारा से फोन किया था, मगर रायमा ने फोन नहीं उठाया। ऐना वापस अपने होटल पहुंच गई थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने कैंप में मौजूद थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कैंप में किसी के आने का शोर उठा। इस इलाके की कोई शख्सियत आ रही थी। सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। ऐना हैरानी से ये मंजर देख रही थी। कुछ देर बाद कैंप के बाहर गाड़ियां आकर रुकीं और उसमें से सरदार हुजाज शाह बाहर निकला। उसने काले रंग की शलवार कमीज पर स्किन कलर की शॉल ओढ़ रखी थी। गहरी नीली आंखों में अजब सी कशिश थी जो देखने वालों को पल भर में ही सहर ज़दा सा कर देती। उसकी शख्सियत पर गहरी नीली आंखें खूब जच रही थी। उसकी आंखों का रंग हूबहू ऐना की आंखों जैसा था। वो सब फॉरेनर डॉक्टर्स को अपने इलाके में खुशामदीद कह रहा था। ये सरदार हनान शाह का इलाका था। इस इलाके में उसकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती थी। ऐना और हनान शाह की नजरें एक दूसरे से टकराईं। एक पल के लिए दोनों अपनी जगह साकित हुए। हनान शाह ऐना को देखकर मबहूत सा रह गया, मगर फिर जल्द ही संभल गया। उस रोज तो वो वहां से खामोशी से वापस आ गया। ऐना के हुस्न के सामने उसे अपना दिल हारता हुआ महसूस हुआ था। उसने जब से ऐना को देखा था वो बुरी तरह से बेचैन हुआ था। जाने इस लड़की में क्या कशिश थी जो उसे अपना दिल उसकी जानिब खींचता हुआ महसूस होता। वरना आज तक सरदार हनान शाह ने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। वो रात भर बुरी तरह बेचैन रह रहकर उसे ऐना का ख्याल सताए जा रहा था। आखिरकार रात भर जागने के बाद वो सुबह सवेरे ही उठकर बैठ गया और वॉक करने निकल खड़ा हुआ। इस तरह से वो अपने अंदर की बेचैनी को ख़त्म करना चाहता था। वो वॉक करते करते उसी होटल की तरफ निकल आया जहां ऐना ठहरी हुई थी। उसी लम्हे ऐना भी अपने होटल से निकली। दोनों ही एक बार फिर एक दूसरे को देखकर ठुठ गए थे, मगर ऐना सब कुछ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई।
حنان شاہ اینا کے پیچھے گیا۔ ایکسکیوز می، کیا مجھے آپ کا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ حنان شاہ نے شائستہ لہجے میں اینا کو مخاطب کیا۔ اینا کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے گھوم کر حنان شاہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں سوالیہ تاثر ابھرا۔ حنان شاہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، مگر اس وقت اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حنان شاہ نے اپنے لفظوں کو کھوتا ہوا محسوس کیا۔ جی کہیے، اینا نے اسے کھویا ہوا دیکھ کر مخاطب کیا۔ آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ حنان شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے نرم لہجے میں اینا سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اینا نے بھی نرم لہجے میں اسے جواب دیا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ آپ کے ہوٹل سے کچھ ہی فاصلے پر میرا گھر ہے۔ حنان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے جواب دیا تھا۔ اینا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ اتنی اچھی اردو میں بات کیسے کر سکتی ہیں جبکہ آپ کا تعلق تو امریکہ سے ہے؟ حنان نے اچھمبے سے اس کے اردو بولنے پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے بابا کا تعلق پاکستان سے ہے اور میں بھی پہلے یہیں رہتی تھی، پھر بعد میں اپنی ماما کے ساتھ یہاں سے چلی گئی۔ یہ سب بتاتے ہوئے اینا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ حنان شاہ نے اس کے سوگوار حسن کو دیکھا۔ بعد میں ملاقات ہوتی ہے، اینا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس پلٹ گئی، جبکہ حنان شاہ کتنی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اس روز کے بعد یہ معمول ہو گیا تھا۔ حنان شاہ اکثر اینا کے راستے میں کھڑا ہوتا۔ اینا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ حنان شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کر چکی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دن یہاں سے لوٹ جانا تھا۔ سردار حنان شاہ جس چیز کو پسند کرتا تھا اسے پا کر ہی دم لیتا تھا، اور اب اسے اینا پسند آ گئی تھی، مگر اینا سردار حنان شاہ کی ضدی طبیعت سے واقف نہیں تھی۔ اگر وہ سردار حنان شاہ کی ضدی اور خود سر طبیعت سے واقف ہوتی تو کبھی بھی یہ بے وقوفی نہ کرتی۔ اس روز سردار حنان شاہ ایک بار پھر سے اس کے ہوٹل کے باہر موجود تھا اور اینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہیے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اینا نے بیزاری سے کہا۔ ان لوگوں کا قیام یہاں کچھ وقت کے لیے مزید بڑھ گیا تھا۔ اینا، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہیں۔ حنان شاہ نے اینا کے زرد پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس روز اینا بے حد جھنجھلائے ہوئے تھی۔ اس کے بابا کا پتہ کہیں بھی نہیں چل رہا تھا۔ سردار حنان شاہ کی بات سن کر اس کا دماغ بری طرح سے کھول گیا۔ اس نے غصے سے حنان کی طرف دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آئندہ میرے سامنے مت آئیں۔ اینا نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور پلٹ کر وہاں سے جانے لگی۔ حنان شاہ نے آہستگی سے اینا کی کلائی تھامی تھی۔ پلیز، آپ میری بات تو سنیں۔ اس نے اینا کو روکنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل اینا غصے سے اس کی جانب گھومی اور اس کا ہاتھ سردار حنان شاہ پر اٹھ گیا۔ سردار حنان شاہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس نے اینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اینا وہاں سے پلٹ کر جا چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ سردار حنان شاہ نے غصے سے اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا جو اس کی محبت کو تمانچہ بنا کر اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ غصے اور ضبط سے سردار حنان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اہانت کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے پلٹ آیا۔ ساری رات وہ غصے کے مارے ٹہلتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، مگر وہ بڑی مشکلوں سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اینا کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے روم کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی، مگر اب بھی اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ رات کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر بالکل خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اینا اپنے گرد شال لپیٹتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہوٹل میں بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
वो होटल से बाहर निकल आई थी। वो वॉक करते हुए कुछ दूर निकल गई, मगर वो नहीं जानती थी कि सरदार हनान शाह उसी के ताक़ुब में खड़ा है। सरदार हनान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। ऐना ने किसी एहसास के साथ पलट कर देखा। उसे एक गाड़ी अपने पीछे आती नजर आई थी। ऐना ने इस बात को अपना वहम समझा था और आगे बढ़ गई, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये उसका वहम नहीं था। वो गाड़ी मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। ऐना इस अचानक उफ्ताद पर बुरी तरह घबरा गई। उसने वापस पलटना चाहा था, मगर वो गाड़ी उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। ऐना को हैरत हुई थी, रात के इस पहर कौन उसका इस तरह से पीछा कर सकता है। होटल वापस पहुंचने का वाहिद वही रास्ता था और इस रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई थी। इसी असना में उस गाड़ी में से सरदार हन्नान बाहर आया। उसे देखकर ऐना की आंखें हैरत से फैल गईं। सरदार हन्नान शाह चलता हुआ उसके नजदीक आया। ऐना को अपना थप्पड़ याद आया जो गुस्से और तैश में वो उसे मार चुकी थी। तुमने क्या समझा था कि सरदार हन्नान शाह पर हाथ उठाना इतना आसान है? हन्नान शाह ने सर्द और कटीले लहजे में ऐना से पूछा। उसके लहजे की सर्द महरी ऐना को अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती हुई महसूस हुई। ऐना ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या बदतमीजी है ये? ऐना का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। शायद तुम मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो। अगर मुझे जानती तो कभी मुझ पर हाथ उठाने की संगीन गलती ना करती। सरदार हन्नान शाह ने ऐना के नजदीक आते उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ऐना का दिल डूब कर उभरा था। मुझसे दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। ऐना ने उंगली उठाकर हन्नान को वार्न किया। उसकी बात सुनकर हन्नान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगा? हन्नान शाह का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। ऐना की हलक में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई। ऐना को उस लम्हे हन्नान शाह से एक खौफ सा महसूस हुआ। घबराहट के मारे वो होटल जाने वाले रास्ते पर जाने की बजाय उसके मुखालिफ सिमत में तेज तेज चलना शुरू हो गई। सरदार हन्नान शाह ने मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। ऐना ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही पल उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। हन्नान शाह की गाड़ी तेजी से उसकी सिमत आ रही थी। ऐना बुरी तरह से बौखला गई। उसने तेज तेज चलना शुरू किया तो उसे अपने सामने पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर दिखाई नहीं दिया। वो उस पत्थर से टकराकर औंधे मुंह गिरी। हन्नान शाह की गाड़ी के टायर चुरचुराए थे और गाड़ी एक झटके के साथ रुकी थी। ऐना की हथेलियां बुरी तरह से छिल गई थीं। उसके पांव से खून भी रिसने लगा था। वो हवास बाख्ता होकर अपनी जगह से उठी और एक बार फिर से तेजी से भागने लगी। वो सड़क पर नंगे पांव भाग रही थी। उसके पैरों में पहनी हुई स्लीपर्स जाने कहां उतर कर गिर गई थीं और अब वो नंगे पांव थी, जबकि हन्नान शाह की गाड़ी मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार उसने मजीद भागने की हिम्मत खत्म हो गई। वो थकती हुई जमीन पर गिरी। उसके मखमली पैर पत्थरों से जख्मी हो गए थे और उनमें से अब खून रिसने लगा था। हन्नान शाह अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और उसकी जानिब आकर उसे बालों से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। भागने की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है मेरी जान, जहां तुमने अपना बचपन गुजारा है। ये मेरा इलाका है और यहां राज भी मेरा ही चलता है। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम मेरी पहुंच से दूर जा सकती हो। सरदार हन्नान शाह ऐना के बेहद करीब आकर गुर्राया। ऐना को लगा वो सांस भी नहीं ले सकेगी। हन्नान शाह ने एक झटके से ऐना का बाजू पकड़ा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। ऐना ने खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रही। सरदार हन्नान शाह पर उसकी किसी मज़ाहमत का कोई असर नहीं हुआ था। ऐना की आंखों से आंसू बहने लगे। सरदार हन्नान शाह ने गाड़ी का लॉक खोलकर ऐना को गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला।
और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी ऐना कुछ समझ सकती, उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऐना की गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दें। ऐना बुरी तरह से डर गई थी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था, मगर सरदार हनान शाह ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद सरदार हनान शाह ऐना के सामने बैठा था। ऐना उसके घर के लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? ऐना ने गुस्से से हनान से सवाल किया। चुपचाप बैठी रहो। अगर गलती से भी यहां से उठने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हनान शाह ने सर्द लहजे में ऐना को धमकी दी थी। पिछले 1 घंटे से मैं आपकी धमकियां ही सुन रही हूं। मुझे यहां से जाने दें वरना बहुत बुरा होगा। गहरी नीली आंखें तैश के मारे मजीद गहरी हो गईं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, तुम्हें उस गलती की सजा तो देनी बनती ही है। हनान शाह ने मुस्कुराते हुए ऐना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा कुछ था जिसने ऐना को ठुठकने पर मजबूर कर दिया। ऐना ने हैरानी से हनान शाह की तरफ देखा। हनान शाह ने अपने मुंह से एक मखसूस सी आवाज निकाली और फिर लाउंज में यकदम हलचल मच गई। ऐना ने आवाजों के सिमत देखा और फिर वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। एक जर्मन शेफर्ड भागता हुआ हनान शाह के करीब आया और उसके पैरों में लौटने लगा। ऐना को शुरू से ही कुत्तों से बेहद डर लगता था और उसके सामने तो इस वक्त जर्मन शेफर्ड मौजूद था और उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर हनान शाह महजूज हुआ था। अगर मैं अभी इसे एक इशारा करूं तो ये तुम्हारा हशर नशर कर दे। हनान शाह ने सर्द लहजे में ऐना से कहा। ऐना को लगा कि वो सांस नहीं ले सकेगी। हनान, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इसे घर में नहीं लाया करो, मगर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। अंदर कमरे से एक शख्स अपनी आंखों पर चश्मा लगाता हुआ निकला। हनान फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और जर्मन शेफर्ड को अपने पीछे छुपा लिया। ऐना को लगा सामने बैठे जिन की कैद से आजाद होने का वक्त आ गया है। ऐना फौरन ही अपनी जगह से उठकर सोफे के पीछे जाकर खड़ी हुई थी और फिर माहौल में यकदम ही सन्नाटा छा गया। ऐना अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर साकित हो गई। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? इस चेहरे की तलाश में ही तो वो यहां तक चली आई थी, मगर साथ ही वो नाउम्मीद भी थी। उसे यकीन नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा अपने बाबा को देख सकेगी और फिर उसके सारे ख्वाब व ख्याल हकीकत का रूप धारे उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। बहू बहू अपने बाबा की कॉपी थी। उसकी गहरी नील सी आंखें उन्हीं पर तो गई थी। गुजरे वक्त ने उसके बाबा पर भी असर डाला था। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। वो चश्मा लगाने लगे थे, मगर आज भी उनकी ग्रेस में कोई फर्क नहीं आया था। सर के बालों में से कहीं कहीं से सफ़ेदी झलक रही थी। सरदार आलम शाह भी अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर साकित हो गए। उन दोनों को लगा जैसे वक्त थम सा गया है। वक्त एक बार फिर से सालों पीछे चला गया था। ऐना को आज भी वो दिन याद था जब वो अपने बाबा के गले लगे बेतहाशा रो रही थी और रायमा उसे उसके बाबा से जुदा करके हमेशा के लिए यहां से ले गई। उस वक्त ऐना 8 साल की थी। उसके जहन में ये सब कुछ नक्श था। वो आज भी कुछ नहीं भूली थी। सरदार आलम शाह और ऐना बस फटी फटी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ऐना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। बाबा, उसके होंठों से फिसला। सरदार आलम शाह तड़प कर आगे बढ़े और ऐना के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ऐना के गालों को छुआ था। वो इस सब को अपना ख्वाब समझ रहे थे। उनकी आंखों में कुछ आंसू टूट कर गिरे। फिर उन्होंने ऐना को खुद में भेंच लिया। ऐना उनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी थी। सरदार आलम शाह भी खामोशी से रोए जा रहे थे, जबकि हनान शाह हक्का बक्का खड़ा ये सब देख रहा था।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो इस सारी सूरत-ए-हाल से बिल्कुल बेखबर था। मैंने आपको कितना ढूंढा बाबा, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? ऐना ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहा था। हनान शाह ने ऐना को ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो, मगर वो अपने बाबा का रोना नहीं समझ सका था। वो क्यों इस लड़की को अपने सीने से लगाए रो जा रहे थे। बाबा, ये सब क्या है? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? हनान शाह, जो खुद ही सरदार आलम शाह को मुखातिब करना चाह रहा था। सरदार आलम शाह ने नरमी से ऐना को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद आंसू रुके तो ऐना भी होश में आ गई। मेरी बच्ची, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं इतने सालों तक तुम दोनों को तलाश करता रहा। तुम्हारी मां कहाँ है? क्या वो भी तुम्हारे साथ आई है? सरदार आलम शाह ने भीगे हुए लहजे में पूछा। मामा अमेरिका में है। मैं यहां एक कैंप के लिए आई थी, मगर ये इंसान मुझे जबरदस्ती उठाकर यहां ले आया। ऐना ने हनान शाह की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसके एकदम से इस तरह से कहने पर हनान बुरी तरह से गड़बड़ा गया। सरदार आलम शाह ने घूर कर हनान की तरफ देखा। ये लड़की आपकी कौन है? हनान शाह भी समझ नहीं सका था। ये लड़की मेरी बेटी है, सरदार आलम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और ऐना को अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ गए। मगर ऐना ने खौफजदा नजरों से हनान के पीछे खड़े जर्मन शेफर्ड की तरफ देखा। हनान, इसे बाहर भेजो और आइंदा ये मुझे घर में नजर नहीं आए, सरदार आलम शाह ने रोबदार लहजे में हनान से कहा। हनान ने फौरन ही उसे बाहर भेज दिया था। रायमा और आलम शाह की पसंद की शादी हुई थी, मगर सरदार आलम शाह के घर वाले इस शादी को कबूल नहीं कर सके। इस वजह से रायमा के लिए यहां जिंदगी बहुत तंग कर दी गई थी। आखिरकार रायमा ने बहुत मजबूर होकर सरदार आलम शाह से अलैदगी का फैसला किया। सरदार आलम शाह ने रायमा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर रायमा ने किसी की नहीं सुनी और ऐना को अपने साथ लेकर दुबई चली गई। आलम शाह ने रायमा को उस वक्त जाने दिया था। उन्होंने सोचा था कि वो बाद में जाकर रायमा और ऐना को अपने साथ ले आएंगे, मगर रायमा वहां से ऐना को लेकर आलम शाह को बताए बगैर ही अमेरिका चली आई। रायमा उससे पहले भी अपनी जिंदगी अमेरिका में गुजार चुकी थी, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में आलम शाह के घर वालों की बेजा मदाखलत बुरी लगती थी। और फिर जब एक रोज आलम शाह की वालदा ने रायमा को पूरे खानदान के सामने बुरी तरह जलील किया, उनकी मोहब्बत की शादी उनके लिए जुर्म बना दी गई, तो रायमा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने आलम शाह से साफ कह दिया था कि वो इस माहौल में नहीं रह सकती, इसलिए आलम शाह को चाहिए कि उनके साथ अमेरिका चले। मगर आलम शाह ऐसे कैसे यहां सब कुछ छोड़कर जा सकते थे। उन्होंने रायमा के साथ जाने से इनकार कर दिया और रायमा दिल बर्दाश्ता हो गई। वो दुबई से खामोशी से ऐना को अपने साथ लेकर अमेरिका आ गई, मगर उन्होंने कभी भी पलटकर आलम शाह की खबर नहीं ली। आलम शाह ने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। रायमा ने अपना कहीं कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। आलम शाह आज तक उन दोनों को ढूंढ रहे थे और फिर अचानक उनकी बेटी उनके सामने आन खड़ी हुई। आलम शाह चाह कर भी इस सच्चाई पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आलम शाह के माँ बाप का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया और बड़े भाई और भाभी भी एक हादसे में चल बसे थे। उस रोज के बाद से उन्होंने हनान शाह को बाप बनकर पाला। हनान शाह ऐना को पहचान ही नहीं सका था, क्योंकि वो खुद भी ऐना से महज 3 साल बड़ा था। ऐना, मुझे एक बार रायमा से बात करनी है, आलम शाह ने ऐना से इल्तिजा की थी। ऐना ने दुख से अपने बाप की तरफ देखा। बाबा, वो आपसे बात नहीं करेंगी, मगर मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से वो यहां आ सकती हैं।
ऐना अपने माँ बाप को एक करना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन अपनी सोच पर अमल करने का सोचा। उसने उसी वक्त रायमा को फोन मिलाया था। दूसरी जानिब पहली ही बेल पर फोन उठा लिया गया। ऐना ने फोन स्पीकर पर डाल रखा था। मामा प्लीज यहां आ जाएं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, ऐना ने कमजोर सी आवाज निकालते हुए कहा। ऐना, जब मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर तुम मेरी कोई बात सुनती ही कब हो? तुम्हें हमेशा अपनी चलानी होती है। स्पीकर में से रायमा की गुस्से भरी आवाज उभरी थी। आलम शाह ने अजियत से अपनी आंखें मींची। इतने सालों बाद वो रायमा की आवाज सुन रहे थे। मामा, मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, आप प्लीज मेरे पास आ जाएं, मैं नहीं आ सकती। ऐना ने यह कहते हुए फोन काट दिया। वो जानती थी कि अब बहुत जल्द रायमा उसके सामने होगी। आलम शाह ने तशक्कुर भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा। कुछ देर बाद वो चौंक कर हनान की तरफ मुतवज्जो हुए। हनान, ये सब क्या था? तुम क्यों ऐना को जबरदस्ती यहां लेकर आए थे और उसे डरा रहे थे? इसी असना में उनकी नजर ऐना के पैरों पर पड़ी थी। उसके पैरों से खून रिस कर अब जम चुका था। ऐना ने भी गुस्से से हनान की तरफ देखा और बदले में आलम शाह को सब कुछ सच सच बताती चली गई। आलम शाह ने गैज़ व गज़ब से हनान शाह को घूरा। हनान पहलू बदल कर रह गया। ऐना इस बात का सबूत दे रही थी कि वो वाकई अमेरिका से आई है। वो आलम शाह को ये बात बताते जरा नहीं झिझकी थी कि हनान शाह ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था और बदले में इसने उसे थप्पड़ दे मारा था। हनान का बस नहीं चल रहा था वो अपने सामने बैठी लड़की का गला दबा दे। कितने आराम से वो उसके बाबा के सामने उसकी मोहब्बत के किस्से बयान कर रही थी। हनान शाह दिल भरकर शर्मिंदा हुआ। रात कैसे गुजरी कुछ पता ही नहीं चल सका। आलम शाह और ऐना सारी रात लाउंज में बैठे बातें करते रहे। सुबह हनान शाह उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो सरदार आलम शाह नमाज के लिए जा रहे थे और ऐना भी उन्हीं के साथ जा रही थी ताकि वो होटल से अपना सामान लेकर यहां आ सके। आलम शाह ने एक मुलाजमा से कहकर ऐना का रूम साफ करवा दिया। ऐना का कमरा आज भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था। 2 दिन बाद रायमा एयरपोर्ट पर खड़ी थी और उनके साथ जोसेफ भी मौजूद था। आलम शाह ने अपने ड्राइवर को रायमा को लेने भेज दिया। रायमा ने कई सालों बाद एक बार फिर खुद को उन्हीं गलियों में महसूस किया। वो माजी की भूल भुलैयों में खो सी गई थी। कुछ देर बाद वो बुरी तरह से चौंक गई जब गाड़ी सरदार आलम शाह के घर के सामने रुकी। वो एक ट्रांस की कैफियत में गाड़ी से उतरी थी। ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया था और सामने ही ऐना सरदार आलम शाह के साथ खड़ी थी। रायमा इस चीज की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रही थी। गाड़ी से उतरते हुए उनके कदम बेसाख्ता ही लड़खड़ाए। उनकी आंखों से आंसू मोतियों की मानिंद टूट टूट कर गिर रहे थे जब ऐना ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और उनका हाथ थामकर वो उन्हें सरदार आलम शाह के सामने ले आई। सालों इंतजार करवाया है तुमने, सरदार आलम शाह ने रायमा की तरफ देखकर भीगे हुए लहजे में कहा। रायमा की आंखें बेतहाशा रोने की वजह से सोच गई थीं। कुछ देर बाद सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे। जोसेफ भी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। ऐना रायमा के गले से लगी बैठी थी जबकि आलम शाह के सामने वो 2 औरतें मौजूद थीं जिनसे उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी और अब किस्मत यूं अचानक उन पर मेहरबान हो जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इन गुजरे सालों ने आलम शाह और रायमा के रिश्ते को मजीद मजबूती बख्शी थी। रायमा बार बार अपनी भीगी आंखें साफ कर रही थी। ऐना जोसेफ से मिलकर बहुत खुश हुई थी और उसे खुशी खुशी सब कुछ बताने लगी थी। जोसेफ भी दिलचस्पी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो ऐना को खुश देखकर बहुत खुश था। ऐना,
सफेद रंग के जोड़े में दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी थी जब जोसेफ कमरे के अंदर आया। ऐना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैसी लग रही हूं? दुल्हन बनी ऐना ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते कहा। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। जोसेफ हल्का सा मुस्कुराया था। जोसेफ, तुम्हारा आज ही जाना जरूरी है क्या? कम से कम निकाह तक तो रुक जाओ। ऐना ने उसे रोकने की एक और कोशिश की थी। मेरी फ्लाइट है ऐना, मुझे जाना होगा, मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम्हें अपने बाबा मिल गए हैं, तुम्हारी सालों से अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और अब तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर भी मिल रहा है, तो अब मेरी क्या जरूरत? जोसेफ ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। ऐना ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी तरफ देखा। जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। ऐना नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। जोसेफ चला गया था और कुछ देर बाद ऐना हमेशा के लिए सरदार हनान शाह के नाम हो गई थी। ऐना ने पूरे दिल से अपने बाबा की इस ख्वाहिश को तस्लीम किया था। ऐना को पाकर सरदार हनान शाह खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था, जबकि रायमा एक तरफ खड़ी आलम शाह और ऐना को देख रही थी। दोनों बाप बेटी के लाड ही कम नहीं हो रहे थे। उन्होंने बेख्तियार अपनी संगदिली पर खुद को कोसा और फिर नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज उनकी जन्नत मुकम्मल हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।